Hi friends, welcome to my channel and it's one of the lazy afternoons. Well, I've just freshened up myself and I'm feeling wow at the moment. So I thought why not record a video. Okay, I want to shout out to two of my you can say favorite subscribers. One is Pavan Dugwat. I have a lot of appreciation for him because he's always point on. It's only that he's extremely very serious and so much into it. But whatever his analysis are spot on, and I will give 100 out of 100 for the understanding of my content to him, because the only thing is that he's on an extreme level, while I take things very lightly. Okay, so having that much knowledge makes us proud, no doubt. We feel we are unique, ऐसा ऐसा हमें लगता है. But to be honest, क्योंकि his kind of English and the way he puts his thought process is absolutely amazing. Okay, there are times I might not agree with his extremist views, because he should understand that social media पे अपने आप को express करना means most of his comments are never reflected. The YouTube hides it or deletes it. I wanted to give a mention to him before, long time back, but I was recording my other content and I was in free flow. So sometimes I do not mention my subscribers when they are coming. Of course, there's Ina K, there's Shaista, there's Meeta Sen. Ina K and Meeta Sen has been quite regular and they are like my friends now. ऐसा लगता है really. Viraj Patel, these are the recent ones I'm talking about. Then there's somebody called Sudhir, and then there's somebody with some big name, सीधा साधा इंसान. See, if I'm rambling some names, ये तुम्हारे user names होंगे. This is my maroon used to be my shade all time favorite. मैं हमेशा maroon ही खरीदती थी. अब maroon में मेरे पास 3-4 shades हैं. This is one of the Insight का है ये. Insight is one of my you can say regular and favorite brands. Pocket friendly और अच्छे खासे shades होते हैं. It all depends how you look through. When I had bought these earrings, I was regretting it like anything. इसके नीचे एक छोटी झुमकी भी थी जो मैंने निकाल दी और I made a separate earring. But this is the first time I'm actually wearing them right now. So मैंने unboxing में एक बार पहना था and एक बार एक वीडियो में पहना था. Now you can see how it looks. Please comment. So I'm feeling very fresh. I'm feeling nice. Dr. Wow, तुम्हें और कुछ काम धंधा नहीं है, but besides only commenting on my sabzi. He's like, no, I can't imagine that. You can imagine that. You can call that Jain pav bhaji, जहाँ पे कांदा, जिंजर, गार्लिक, लहसुन, अदरक, बटाटा, आलू. I should not say batata. All this is not there. See, I cook my, as I said, I bring a lot of variety to my food and I generally try to avoid onion. Onion डालने से ना सब्जियाँ पच हो जाती है. Onion, garlic, ginger में बहुत taste भी आता है, no doubt. This is my second cup of herbal tea. Spices and mint leaves. Because of I'm having this regularly, my cold is under control and I don't feel that cold. I'm not feeling, chilly जैसे बोलते ना. क्या बात है शांति जी. I proudly wear my bindi. I proudly wear my green bangles. I proudly wear my oxidized jewelry. अगर मेरे oxidized bangles है, मैं दोनों हाथों में पहले डालती थी, but then it becomes too much and I look like a sometimes I like to keep my bare hand and just wear an oxidized ring. And I wear my payal. I love toe rings also.
So maybe after sometimes I might add some toe rings and all that. So I love my Indian look. Okay. मेरा सिग्नेचर स्टाइल हमेशा वही रहता था, स्लीवलेस कॉटन कुर्ताज एंड लेगिंग्स, स्नेक बिंदी, या तभी मैं पहनती थी स्नेक बिंदीज, एंड मैं ज़्यादातर ऑक्सीडाइज आर्टिफिशियल भी पहनती थी, बट आई यूज टू स्टिक टू माई गोल्ड एंड सिल्वर जो भी था. बट नाउ आई एम मोर ओपन टू वेयरिंग different kinds, experimenting with my look. And I used to wear my silver anklets. मेरे पास silver toe rings काफ़ी सारे variety में थे, toe rings, and so I am used to wearing all these things. So मेरा style statement वैसे ही रहता है. Cotton, I prefer cotton this कुर्ताज ही रहते हैं मेरे generally. Now I'm wearing full sleeves and all that. I like that Indo-Western kind of when you're blending styles. You're not a Bahenji, you're not too Western, you're not too Indian. You're just Indo-Western. You're comfortable in your style. Yeah, you're wearing your traditional outfit at the same time. You're comfortable. You're stylish. Say what? Wow. कल मैंने कितने किलोमीटर्स चली होगी, 6-7 किलोमीटर्स. वो क्रिसमस फ्लोट था, मैं कभी जाती नहीं हूँ. फर्स्ट टाइम आई वेंट. मुझे प्रेयर करना था कल. मैंने बोला भगवान मैं इतने लोगों को फेस कैसे करूँ. और उसी दिन वो मेन वो पैरिश प्रीस, उनका भी हैप्पी बर्थडे था. फिर उसके बाद एक क्रिसमस फ्लोट, जो कि सी आई वॉज आउट ऑफ टच विद ऑल दीज थिंग्स. आई डोंट पार्टिसिपेट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. तो ऐसा चलो इस बार चलते हैं. सो ये क्या करते हैं ना, वो पूरा वो ओपन ट्रक लेके, उसके सामने एक जनरेटर होता है क्योंकि वो फुल ऑफ लाइट्स वगैरह होते हैं ना. सो दे गो टू ईच एंड एवरी दीज बिगर कॉलोनीज, और वहाँ पे स्टॉप करते. तो देन दे सिंग कैरलिंग, और वो दे सिंग सॉन्ग्स एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट. At the last colony we went, there were firecrackers and all, you know how they this snacks भी दिए थे जो मैंने खाया नहीं, because I was on fasting. तो मुझे after a long time वो खाने को भी नहीं हो रहा था. And trust me, I was on the front, when I had to do my prayers, I had to sit on the front seat, okay, and I was not repeating a single prayer. मेरे मुंह से निकल ही नहीं रहा था वो रट्टा मारने वाले प्रेयर्स. तो आई थिंक द प्रीस्ट वर लुकिंग इनटू माय फेस कि मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी ऐसे पोपट की तरह, मन ही नहीं कर रहा था. मैंने बोला मैं क्या कर रही हूँ. ठीक है, मैंने वॉलंटियर कर लिया. एक जमाने में मैं बहुत सारे प्रेयर्स करती थी, अभी मुंह से निकलते नहीं वो पैरेड जैसे प्रेयर्स. एक इतने लंबे लंबे, कुछ मीनिंगलेस. मुझे तो मीनिंगलेस ही लगे. मैंने बोला क्या है, रियली टाइम पास. वी ह्यूमन बीइंग्स वांट टू कंसोल आवरसेल्व्स दैट हम लोग ऐसे प्रेयर करके भक्ति में कुछ. तो लिटरली मेरे मुंह से प्रेयर्स नहीं निकल रहे थे. एंड आई वाज टोटली दिस वेरी ट्रेडिशनल. Just because I'm saying prayers in English doesn't mean I'll be going in some. I went in my green, वही जो वहाँ पे हैंग किया है ना, वो वाला चूड़ीदार ये पहना था. मतलब कुर्ता लेगिंग्स पहने थे, ग्रीन कुर्ता एंड वाइट लेगिंग्स. सीरियसली, दो आई वॉज ऑन द फ्रंट सीट, मैंने एक प्रेयर रिपीट नहीं किया. मैंने अपने हिस्से का प्रेयर बोल के आई हैड टू से दोस. एंड ट्रस्ट मी, आई वाज डूइंग आफ्टर 6 years. बिफोर आई वाज वेरी एक्टिव इन सच थिंग्स. वाओ, आई एम लुकिंग वेरी फेयर. तो वो ना देन दे वेंट टू दिस L&T कॉलोनी, देन दे वेंट टू कनाकिया रेन फॉरेस्ट, देन वहाँ से चल के फिर यहाँ पे लोग सरिता, देन अशोक नगर. तो द एंटायर ट्रिप हो गया 5-6 किलोमीटर्स, क्योंकि वो बहुत ही लंबा था ना. इट स्टार्टेड एट अराउंड 6:45-7 एंड इट एंडेड एट 10 o'clock. मतलब धीरे धीरे दे वर स्टॉपिंग एंड देन द यूथ वर डांसिंग. जहाँ पर भी वो स्टॉप हुआ था, एनीबडी कुड ज्वाइन बिकॉज इट्स अ फ्लोट. बट लोगों को लगता है कि
क्रिश्चियंस का है, ऐसा कुछ नहीं. एनी एंड एवरीबडी कुड जॉइन इनटू इट एंड कीप वॉकिंग और एंजॉइंग और वेयर दोज हैट्स और वेयर दोज थिंग्स. एंड क्या है, इट्स अ सेक्युलर प्लेस. एंड आई विल टेल यू अनदर थिंग अबाउट दिस चर्च कंपाउंड इज दैट I am not the only one who's sitting there on that bench. There's one Bengali lady who comes every other day. Every day आती है और वो कैथलिक लेडीज से चिट चैटिंग भी करती है. आई थिंक शी स्टेज ऑपोजिट ओनली, opposite the church. वो हमेशा आती है और वो कैंडल जलाती है, बंगाली लेडी. देन देयर इज अनदर पारसी लेडी विद दैट पारसी आंटी. आई स्पीक टू, मैं उसकी बात भी कर रही, लुक्की पुक्की पैसे वाली फीमेल. वो इज अनदर लेडी हु कम्स एवरी सिंगल डे. शी गोज इन साइड द चर्च, थोड़ा अंदर प्रे करती है, देन वो बाहर आती है, वहाँ पे कैंडल जलाती है. बिकॉज आई नो हर, बिकॉज आई एंड शी यूज टू हैव द सेम टाइमिंग्स. और हम वो कैंडल जलाती थी, मैं बेंच पे बैठती थी, मेरा कैंडल जल. सो दैट्स हाउ वी सेड हाई हेलो टू ईच. शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. तो दैट्स हाउ आई एम सेइंग चर्च इज अ सेक्युलर प्लेस. कि वो अगर कंपाउंड में बैठे हैं, वहाँ पे बेंचेस होते हैं, ग्रोटो के पास वो स्टैचू, तो वहाँ पे पीपल कैन गो एंड सिट. ऐसा कुछ नहीं है कि, क्योंकि मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती, बहुत शोर शराबा रहता है एंड इट्स वेरी अनटाइडी ऑल्सो. एटलीस्ट वो चर्च स्पेशियस, क्लीन, नीट, पीसफुल भी रहता है और कोई तुम्हें ऐसा लुक डाउन अपॉन भी नहीं करता है. एंड देन आई सॉ दीज यंग बॉयज आते हैं ना, वो भी सम पीपल जस्ट कम, यू नो, जो पीजी में रहते हैं वो भी आके वहाँ पे बैठ जाते हैं कंपाउंड में, थोड़ा प्रेयर कर. सो यू डोंट हैव टू प्रे, यू कैन जस्ट सिट देयर पीसफुली. दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील. लोगों को लगता है कि कहाँ मिलेगा पीस ऑफ माइंड. इवन इफ यू आर एन एथियस्ट, वो तो तुम्हारे धर्म के खिलाफ होगा. हम ये रिलीजन के हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम जैन हैं, हम क्या है, सरदार सिख कम्युनिटी के हैं. तो ऐसा कोई ये नहीं है. यू कैन जस्ट गो देयर एंड सिट. यू डोंट इवन हैव टू मम्बल एनी प्रेयर्स. मैं खुद भी गुरुद्वारा जाती थी, मैं खुद भी टेम्पल जाती थी. आई एम वेरी सेक्युलर काइंड ऑफ पर्सन. इसलिए मैं रिलीजन्स के बारे में इतना ओपनली क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी विजिट करती थी. ये बुद्धिस्ट टेम्पल भी विजिट किया मैंने. सो डोंट फील कि दैट्स पर्सनली व्हाट आई फाइंड कि सेक्युलर है. तुम जब कंपाउंड में जाके बैठ सकते हो पीस ऑफ माइंड के लिए, रादर देन हैंगिंग हियर देयर. गार्डन इज अनदर प्लेस, लेकिन अच्छी वाली गार्डन ढूंढो, ऐसे अनटाइडी गंदी वाली. और ये बच्चों की स्विंग वाली तो नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड अनोइंग एंड नॉइजी रहता है. आई एम नथिंग अगेंस्ट चिल्ड्रन, बट जनरली वो वैसा ही रहता है. लेट द चिल्ड्रन प्ले एंड एंजॉय देमसेल्व्स ना. एक्चुअली ना ये जो यहाँ पे एक झुमका था, तो तोड़ दिया उन्होंने जब उनको when he had to remove it, तो इसलिए वो ऐसा लग रहा है. तुमको कोई इयरिंग पसंद आया तो बता दो. सी आई ट्राई माई फूड इन डिफरेंट वेरिएशंस बिकॉज वी आर फेड इन आवर माइंड कि हमें यही मसाले डालने हैं, ऐसा ही करना है. दैट खड़ा पाव भाजी वाज सो गुड, आई कांट टेल यू. आई ट्राइड इट इन टोस्ट. देन आई मेक 3 पोर्शन. मैंने थोड़ा सा ही बनाया था. द लास्ट वन आई ट्राइड विद मुरमुरा एंड शेंगदाना एंड आई मेड अ सूखा बेल आउट ऑफ इट एंड आई हेड. देयर वाज ओनली वन और 2 चम्मच रिमेनिंग. तो मैंने बोला उसका मैं क्या करूँ, तो मैंने मुरमुरा में उसको सूखा बेल बना के खा लिया पीनट्स डाल के, एंड इट वाज टेस्टिंग सो गुड. अमचूर डालने से ना वो खट्टा सा अच्छा सा टेस्ट आया था उसको. बट सिंस टमाटर वाज देयर नॉट रियली रिक्वायर्ड, फिर भी मैंने फ्लेवरिंग के लिए डाला. सब्जी में अमचूर डालने से या दाल में डालने से उसको बहुत अच्छा स्वाद आता है. मेरे जो स्पाइसेस है ना, दे आर ऑल टाइम. वो सारी चीज़ों में पड़ते हैं मेरे. अब इसमें तुम बॉईल करके आलू भी डाल दो या पनीर भी डाल दो. समटाइम्स यू डोंट हैव टू मेक सो मच ऑफ सब्जी. यू कैन मेक स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस सब्जी एंड मेक अ सेपरेट सब्जी. जैसे पनीर है, पनीर को ऐड कर दिया तो ये पनीर की सब्जी बन गई.
गॉट इट. योर बेस इज गुड ना, तो तुम यू कैन प्ले अराउंड विद द सब्जी. लोगों को दिमाग में एक ही चीज होता है कि इसी तरह से यूज करना है. सी, टुडे व्हेन आई गॉट अप आई हैड आंवला एंड आई हैड घूसबेरीज. थोड़ा वो बोर बोलते ना, वो थोड़ा बच गया था मेरा, जो मैंने सैटरडे को लाया था. कभी तो लाया था मैंने, हाँ सैटरडे को ही शायद से. सैटरडे को नहीं, फ्राइडे को. या So, Pavan, once again, thank you for all your comments. But as I said, YouTube is either deleting it or hiding the comment, and I really appreciate your guts to pen down your thoughts. It's not very easy. Ina is my another of my subscribers who has got the content 100%. Meeta saying thank you so much. You know, again and again I'm mentioning some of my subscribers is because it is their valuable contribution which helps me also. It's very motivating. वरना क्या होता ना, लोग कोई ऐसे कुछ normal comments करते on my looks or something, but when somebody gives in depth analysis, जो रियली अपना मेहनत करके लिखते हैं और अच्छी खासी इंग्लिश में, अच्छे खासे ग्रामर में, प्रॉपर सेंटेंसेस में सेंसिबल वाली बातें लिखते हैं ना, तो बहुत खुशी होती है. आई नो आई एम साउंडिंग वेरी प्रिटेंशियस एंड लाइक मैरी एंटोनेट एट द मोमेंट, बट वी हैव टू अप्रिशिएट दैट ऑल्सो. वी हैव टू अप्रिशिएट दैट. Mita Sen also has quite good analysis and good feedback. और किसको, स्वीटी व्लॉग्स was one of my subscribers who had very good hold over the content. Babu K. Then there was one of my very dear subscribers, Ankit Jha. I don't know where is he right now. Maybe पढ़ाई में व्यस्त होगा or something. He was another one who was always always very regular. Who else? Nirmal Kumar और कौन है? If I'm missing out on some of them, please do not feel bad. I will definitely give you a shot. Agulus is another one. I'm having my plum cake. देखो भाई, plum cake कैसे दिखती है मेरी. It's lovely, rich plum cake. I'm not really very fond of plum cake, but this is one of the very high quality plum cakes, very expensive ones. और ये जो घर पे जो बनाते हैं ना ऑर्डर देके, if you they soak it in rum, so ये highly expensive भी होते हैं, on the expensive side, 2,000-3,000 rupees और kg, because it is worth it, because वो rum में वगैरह सुखाते हैं, soak करते हैं. 1 kg if you are getting, I think it is worth it because there's plum in it and it's customized. तो ये भी एक अच्छी केक है, very well presented, well done, well packed, tasting very good. Yeah, and I realized that we have to warm the cake before eating, क्योंकि मैंने first time जब खाई थी उसको कोई taste नहीं था, and I had a big piece. तो अभी I'm just having a small slice of it with my herbal tea. And this is the slice I have, this much portion. I had my brunch. This is my afternoon tea. I walked a lot. उन लोग स्नैक्स बांट रहे थे, वो भी नहीं खाया मैंने. कोई नॉनवेज कुछ था पाव का, ब्रेड का कुछ मैंने खाया नहीं. वो क्या हुआ था, सुबह से अगर फॉर फास्टिंग, एंड आई वाज इवन ऑन ड्राई फास्टिंग. मैंने पानी भी नहीं पिया था बिकॉज मुझे प्रेयर करने थे और इतने सारे तादाद में लोग थे वहाँ पे. मे बी इन फ्रंट ऑफ 300 पीपल और सो, और प्लस, और वो भी फर्स्ट बेंच पे बैठ के, जबकि मैं फर्स्ट पीछे बैठती हूँ और मैं आधे से निकल जाती हूँ. They were staring into my face because I was not repeating any of the prayers. Sorry to say, मेरा मन किया, मैंने बोला
लेट मी डू दिस. अगर मैं नहीं जाती ना तो मैं ये फ्लोट में भी नहीं जाती, क्योंकि मैं आउट ऑफ द वे कोई चीज नहीं करती हूँ. सो इट वॉज जस्ट आफ्टर द प्रेस, तो मैंने बोला ठीक है क्रिसमस फ्लोट भी देखते हैं. और मुझे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज आई वॉक अर्ली मॉर्निंग 4 किलोमीटर्स. तो ये 5-6 किलोमीटर्स चल के मेरे पैर दर्द नहीं हुए. थोड़ी थकान आ गई बिकॉज आई वॉज फास्टिंग एंड आई वॉज लिटिल. वो क्राउड और नॉइज मुझे ज्यादा पसंद नहीं आता. तो मैं क्या कर रही थी, मैं आगे चल रही थी. मैं इन लोगों के साथ नहीं चली. मैं थोड़ी देर इनके साथ चली, फिर बाद में मुझे बहुत बोर लगा और मैं वो गाड़ी के सामने से, मतलब वो जनरेटर के सामने से चल रही थी. मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड. I was not with the crowd because I cannot handle so much of light and noise. That is the reason. एंड ये जब वो आगे वो किसी सोसाइटी में या बिल्डिंग में रुकते थे, तो आई यूज टू फाइंड अ प्लेस टू सिट. तो मैं रिलैक्स करती थी. आई वॉज नॉट जंपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, जो भी मैं नहीं कर रही थी, बिकॉज आई जस्ट फेल्ट कंफर्टेबल जस्ट बीइंग अराउंड. शायद मुझे थोड़ा ओवर इंथुजियास्टिक होके गाना भी गाना चाहिए था, या डांस भी करना चाहिए था, या क्लैप हैंड्स, या ऐसे सामने सामने. आई डिडंट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स. चलो, आई हैव टू वाइंड अप. आई मेक अनदर वीडियो. ओके, बाय.